Good morning, children. So yesterday we had studied about the two type of immunity which we have got. That is the two type of immunity we got, that is the innate immunity and acquired immunity, and we also done the differences between them. That is, the innate immunity is the one which is there always right from the birth, and the acquired immunity is the one which we develop once we come across any type of pathogen. Okay, so that too we have already studied, and we have also differentiated them, and we also studied that is what are the innate immunity, what are the 5 lines or 4 lines of defense, that is the primary, secondary, tertiary, quaternary, that is 4 lines of defense जो है उसके बारे में हमने पढ़ा. What all things are there which make them, that also we have studied, and we have even studied the role of WBCs which are non-specific, which is equally attacking on the all kind of pathogens, whether they know them or they don't know them or whatever. Acquired immunity is slightly different. Acquired immunity is developed in our body once our body comes across such type of pathogens. Okay, once our body recognizes that the pathogens have come, and accordingly the steps are taken. Okay, now see, there are different kind of theft, and for different kind of theft, if I am talking about the normal life, okay, around us there are different kind of theft, and according to different type of thefts we have to set different type of security. Say for example, if any theft is done through a software malware in your computer, you cannot keep a watchdog there, or you will not keep a watchman there. Watchman is to protect your house. कंप्यूटर को अगर आपको बचाना है malware से or from the attack of any virus, then you will have to use antivirus. ठीक है? That is a different security. If you have to protect your card, credit card या debit card को, तो वहाँ के लिए आपके अलग option. You have to keep the credit card or debit card switch off normally, and when you want to do any transaction, you put it on and do the transaction, and then again put it off, because you got the net banking password, so you can do it. That same is what the other type of things. So हमने अलग अलग चीज़ों को safeguard करने के लिए अलग अलग तरीके लगा रखे हैं, and the one can safeguard only one type of things. Similarly, in our body there are different type of pathogens, and for all kind of pathogens we got different type of antibodies or different type of immunity. The acquired immunity is specific to one particular pathogen only. If you have immunity against tetanus, तो वो केवल आपको उसी से बचाएगा, वो किसी और से नहीं बचा सकता. वो आपको किसी और से नहीं बचा सकता. You think you have got the tetanus vaccine and now you will not have cough and you will not have corona. You might have got so many different vaccines in your life, but for corona it is effectless. Why? Because वो केवल उन्हीं के अगेंस्ट बचा. अब आप you keep a watchdog, आपने घर में एक कुत्ता पाल लिया है, just for the sake कि रात में कोई आए जरा भी हलचल हो, वो करना शुरू कर देगा, and you will get up and you will save protect your house from getting robbed. But that is not suitable for your mobile, it will not suitable for your computer, it will not suitable for your credit card, it will not be suitable for your the things which you have kept in the school. ठीक है, तो उनके लिए आपको अलग तरीके लगाने पड़ेंगे. तो the same is to here. कौन है? मानस मल्होत्रा, आई डोंट नो, ऐसा कोई बच्चा हमारी क्लास में. चलिए जाना जब टाइम टेबल याद आ जाए. तो acquired immunity on the other hand is a pathogen specific. Pathogen क्या है? पहले पढ़ चुके हैं. Pathogen are disease causing microorganisms. Is characterized by memory. Second thing is very important is that we have to memorize it. That is how long. ठीक है? If the pathogens are very frequently coming in, that is those people who are living in a क्या कहते हैं environment like ये जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, the people who are living at the side of the drainage, and those who are living in
those places which are totally inhostile. तो ऐसी जगहों पे अगर वो रह रहे होंगे and they are continuously exposed to the various kind of pathogens, so their body will make antibodies and it will be kept for long. तो उनको फिर वो वाली बीमारियां नहीं होती हैं, ठीक है. Now you might have seen that यार ये कैसा खाना खा लेते हैं, यार ये कैसा पचा लेता होंगे. If we eat that kind of food, we get stomach ache, we get food poisoning, we maybe have to admitted in the hospital for a week or so. उनको क्यों नहीं हो रहा? Why? Because whatever pathogens are there for which their body has developed immunity, and that immunity is kept because they are every day they are eating that kind of food. Every day they are staying in that unhygienic condition. तो वो उनकी memory permanent हो गई एक तरीके से, where which is not true for us. This means that our body, when it encounters a pathogen for the first time, produces the primary response and with a low intensity, and subsequent encounter with the same pathogen elicit highly intensified secondary anamnestic response, and this is ascribed to the fact that our body appears to have memory. पहली बार जैसे मैं कल आपको बता रहा था, फर्स्ट टाइम व्हेन योर मदर इज लर्न सम रेसिपी, तो शी विल बी वेरी कॉशियस, शी विल बी वेरी केयरफुल, है ना. वो कितना नमक डालना है, शी विल सी 3 times, शी विल सी हाउ मच सॉल्ट हैज टू बी पुट, हाउ मच चिली हैज टू बी पुट, हाउ मच अदर स्पाइसेस हैज टू बी पुट, व्हेन टू पुट एंड ऑल, वो सारी चीज़ों को ध्यान. एंड वंस शी लर्न, even after 6 months you ask, she will make, because she knows it is in her memory. फिर तो उसको फटाफट आएगा. हाँ, लेकिन अब वो मेमोरी कितने टाइम तक रखनी है, दैट डिपेंड्स, है ना. अब इफ अ पर्टिकुलर थिंग वी आर कंटिन्यूसली ओवर एंड ओवर कुकिंग, देन उसके लिए कोई बार बार आपको यूट्यूब पे देखने के लिए या कोई रेसिपी बुक ढूंढने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. तो वो हमारी मेमोरी में फिर हमेशा रहता है. So the primary and secondary immune response are carried out by with the help of 2 special type of lymphocytes. 2 types. कौन कौन से? B and T lymphocytes. B lymphocytes या वायरस. T lymphocytes. Now what is B and T stand for? B stand for bone marrow, and T stand for thymus. These are the schools where these WBCs go. You know WBCs are produced in the bone marrow. Guys, after production of these cells in the bone marrow, then they have to get matured. When they are getting matured, if they are maturing in the bone marrow itself, they will be called B lymphocyte. If they are getting matured in the thymus, then they are called T lymphocyte. Both B lymphocyte and T lymphocyte are entirely different type of function. Whereas the B lymphocytes are associated with making antibodies, the T lymphocytes are generally responsible for memory. And T lymphocytes are also responsible for cell-mediated immunity. देखते हैं क्या लिखा है? The B lymphocyte produce an army of protein response to the pathogens in our blood to fight with them. What is this army of thing? That is वो lymphocytes हैं, and they got special type of protein in them. अच्छा, the protein which are found in the pathogens are known as antigens. Protein which found in the pathogens are known as antigen. Antigen क्या है? Antigen are proteins of pathogens, and the protein which we make against antigen is called antibodies. Protein we make against antigen. उस एंटीजन के अगेंस्ट जो प्रोटीन हमने बनाया उसको हम क्या कहेंगे? एंटीबॉडी. ठीक है. तो द प्रोटीन इन रेस्पॉन्स टू द पैथोजन इन आवर बॉडी, है ना. B lymphocyte produces an army of protein in response to the pathogens in our
in our blood to fight with them, क्योंकि ब्लड में इसलिए हम इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं. तो these proteins are called antibodies. क्या कहेंगे इन प्रोटीन्स को? एंटीबॉडीज. कार्टून दे रखा है यहाँ पे एंटीबॉडी का, है ना. The T cells themselves do not secrete antibodies but help B cell to produce them. वो उनको याद रखती है और जब भी सब्सिक्वेंट अटैक होता है तो फट से वो बी सेल्स को कहती हैं अरे immediately prepare that kind of B lymphocyte, that is the antibodies which is required for killing that kind, the specific type of antigen. ठीक है, तो ये उनको कह रही हैं कि आपको ये बनाना है. ओके, नाउ ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, अब आज में एंटीबॉडी पे आ गए. ये डायग्राम दे रखा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, है ना. तो यहाँ पे देख लीजिए. नाउ ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स, 2 लॉन्ग एंड 2 स्मॉल. आप देख सकते हैं जो सी दे रखा है ये वाला, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक बड़ा वाला वाई. तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग चेन. एंड ये जो छोटी छोटी चेन है यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड में लाइट चेन एंड हेवी चेन नाम रखे हैं. So 2 light chains are there and 2 heavy chains are there. That is why it is called L2H2. Okay. So yeah, H2L2 जो भी है ना. तो now you can even see this particular sites, यहाँ पे क्या लिखा है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट. यहाँ और यहाँ हटो ना यार, क्या करो. ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है. एंड बाकी उसका स्ट्रक्चर बना है ना. एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या है? जस्ट नाउ आई सेड द प्रोटीन विच आर फाउंड इन द पैथोजेंस आर कॉल्ड एंटीजन. एंटीबॉडी वी मेक अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन, पर्टिकुलर. सो एवरी एंटीबॉडी इज पर्टिकुलर टू वर्क अगेंस्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन. ठीक है, वो 1:1 का रेशो है. इट इज नॉट दैट वन एंटीजन यू मेक एंड इट विल अटैक ऑन एनीथिंग. ये कोई तलवार तो वो गोला ऐसा नहीं है जो हर किसी पे अटैक करते हैं. ये स्पेसिफिक है. सो दिस विल वर्क ओनली ऑन अ स्पेसिफिक एंटीजन विच इज एग्जैक्टली फिटिंग इन दोज साइड्स, द साइड्स विच यू कैन सी. इफ इट एग्जैक्टली फिट्स देयर देन ओनली इट विल ब्लॉक इट. इफ इट डजंट इट विल नॉट बी ब्लॉक. ठीक है, and that is why pathogen keep changing their protein and that is why we have to keep changing our antibody. Okay, और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर our immunity to a particular disease में हो. तो अगर आपको मालूम हो कि आप जो से फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी कई सारे टाइप होते हैं, A B C D, है ना. तो A and B are not very dangerous, B is not very dangerous, hepatitis B is dangerous, A is not dangerous. तो वो इस बात पे डिपेंड करता है ना. कभी वो एक जैसे रहे होंगे लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे आर चेंज. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी. आर 5 होते हैं, इन्हें 4 के नाम दिए. इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन M, E एंड G. D को क्यों छोड़ दिया भगवान जाने. एक और लिख देते तुम सब बहुत ज़्यादा जगह गए. तो देयर आर 5 टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन आवर बॉडी. IgA, IgM, IgD, IgE, IgG. ठीक है, तो दे आर सम ऑफ देम क्या, ऑल ऑफ देम. ओके, नाउ कार्टून ऑफ द एंटीबॉडी इज गिवन इन द फिगर 3.8.4. बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स. तो आप ये याद रखें, एक एक बढ़ के ये क्वेश्चन बनते हैं. व्हाट इज ह्यूमरल रेस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून, तो वो आप जान जाएंगे. नाउ दिस इज द वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ अक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स, एंटीबॉडी मेडिएटेड. जिसको हम क्या कहेंगे, जो बी लिम्फोसाइट है दे आर एंटीबॉडी मेडिएटेड. अब आते हैं टी लिम्फोसाइट के ऊपर. तो क्या है, द सेकेंड टाइप ऑफ इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स और CMI. द टी लिम्फोसाइट मेडिएट CMI. नाउ सेल मेडिएटेड क्या होता है, सेल मेडिएटेड क्या होता है. ओके, तो टी लिम्फोसाइट क्या है, सेल मेडिएटेड. नाउ व्हाट इज मेंट बाय सेल मेडिएटेड. सेल मेडिएटेड मतलब क्या है, व्हेनेवर आवर बॉडी टेक्स सम फॉरेन सेल्स. फॉरेन सेल्स मतलब ये नहीं कि हम कोई मांस मच्छी अंडा खा रहे तो फॉरेन सेल्स है, वो बात नहीं है. इट शुड नॉट एंटर इन द बॉडी. मांस मच्छी अंडा खा रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट इज स्टिल आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, इफ इट एंटर्स इन आवर बॉडी तो हमारी बॉडी उनके पास पहुंच जाती है. बोले आप कौन, कहाँ से आए, कब लेते हैं हम ऐसे, whenever there is
implants, whenever there is grafting, whenever we take someone else's kidney, ठीक है, किडनी है, कॉर्निया है, दूसरी चीज़ें हैं, ये क्या है, सेल्स हैं, टिश्यूज़ है। जब ये फॉरेन टिश्यूज़ अपनी बॉडी में आती है तो आप बॉडी द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दैट इज द टी लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज में, बोले आप तो हमारे नहीं हैं, उनसे जाके बोलते आप हमारे हैं कौन, तो वो बता नहीं पाती, जवाब नहीं दे पाती है, तो उनको दे स्टार्ट ईटिंग, फैगोसाइटिंग एंड किलिंग। तो देखिए क्या लिखा है, द टी लिम्फोसाइट दैट इज मेडिएटेड CMI वेरी ऑफन when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplant is the only remedy to enable the patient to live normal life. तो वो किडनी तो गई उसकी, तो अब तो क्या दूसरी लेकर ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी, और कॉर्निया और समथिंग एल्स। तो क्या होगा, देन सर्च बिगिन टू फाइंड अ suitable donor. Why suitable? Why suitable? Why not anyone? Why not human only? Why not pig, donkey, cat, rat? rat तो बहुत छोटा हो जाएगा, so much किडनी होता है। डोंकी का कितना ले लेंगे, हमारे से भी बड़ा होता है, डोंकी का किडनी लेके लगा लो, और डोंकी तो ऐसे घूमते रहते हैं। कुछ और के ले लो, कौन से फालतू जानवर बहुत सारे सड़कों पे घूमते रहते हैं। कैन वी टेक एनीवन? डॉग का किडनी लेके हमारे में लगा सकते हैं? Unmute yourself and tell me. Can we take the kidney of any other animal? ऐसा होता तो हम उल्लू की आंख लगा लेते। क्या बोलेंगे आंसर? नहीं सर, यस सर, नहीं सर, यस सर। हाँ, वी दूसरे जानवर का तो छोड़ो, हम दूसरे इंसान का भी नहीं ले सकते। We cannot even take any other human's organ. उसके लिए हमको मैच करने पड़ते हैं। तो वहाँ लिखा है टू फाइंड अ सूटेबल डोनर। व्हाट डज द सूटेबल वर्ड मीन? सूटेबल का मतलब होता है कि उसके जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के कंपैटिबल है कि नहीं। और ऐसा तो नहीं कि our body will reject it। ऐसा तो नहीं कि जैसे आप लोगे टी लिम्फोसाइट पहुँच जाएंगे और उनसे पूछेंगे आप कौन। जैसे कि हमारा स्कूल है, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं सुबह सुबह फादर, पहले वाले फादर तो खड़े होते थे, तो पता नहीं, तो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, एंड जो भी आते रहते तो आपको यूनिफॉर्म बोले हैं, वे जो यूनिफॉर्म कम स्टैंड हियर, ठीक है। यूनिफॉर्म क्या है? वो हमारी आइडेंटिटी है। ऑल आवर सेल ऑल्सो हैव दिस टाइप ऑफ प्रोटीन विच कैन बी पैथोजन फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। एवरी ऑर्गेनिज्म गॉट सम स्पेशल प्रोटीन दैट इज कॉल्ड पैथोजन, क्या कहते हैं, एंटीजन। तो हमारी भी बॉडी में कुछ एंटीजन विच इज गुड फॉर अस बट बैड फॉर अदर। हमारी बॉडी के प्रोटीन को हमारी टी लिम्फोसाइट पहचान रही है। इफ एनी अदर एंटीजन डिफरेंट फ्रॉम आवर एंटीजन इज देयर, फटते बॉडी करके भैया आप कौन, यहाँ रुक जाओ, एंड देन हो जाती है उनकी खच 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 खच। एंड दैट इज वाई इवन व्हेन समबडी get implanted किडनी, किसी से किडनी ले लेता है तो उसके सक्सेस रेट बहुत कम होते हैं, और उसके लिए हमको इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ता है। तो देखिए वाई इट इज दैट द ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन जस्ट फ्रॉम एनीबडी। व्हाट इज दैट द डॉक्टर चेक। तो डॉक्टर चेक करते हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। एन एनिमल और अदर प्राइमेट और एनी अदर ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड ओनली बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगी, उसको तो फेंक देगी उखाड़ के बॉडी, बोले कि आपको, ठीक है। तो द टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट, ठीक है। इवन आफ्टर दैट एक बॉडी में ग्राफ्ट कर लिया, ट्रांसप्लांट कर लिया, आफ्टर ऑल सॉर्ट ऑफ टेस्ट्स देन ऑल्सो उसको जिंदगी भर इम्यूनोसप्रेसर खाने पड़ेंगे। इम्यूनोसप्रेसर क्या होता है? जो टी लिम्फोसाइट है इनके नंबर को कम करना पड़ेगा, so that they will not kill the grafted organ, and उसके बदले में हमको कई बीमारियाँ हो सकती हैं। And that is why whenever a person have grafting or takes the organ from someone else,
उसको फिर बोलते हैं कि अब आप आपको सब कुछ हाइजीनिक खाना खाना है, हाइजीनिक कंडीशन में रहना है, 80 बजे से 80 बजे के अंदर खाना खा लेना है, मुंह कवर करके रखना है, ये वो। अगर आपको जीने की इच्छा है तो ये सब करें, नहीं है तो मत करें। तो ये है, तो ये इम्यूनोसप्रेसर समझ गया ना आप, इम्यूनोसप्रेसर दैट इज टू सप्रेस द immunity to his or her entire life. The body is able to differentiate self and non-self because of the cell-mediated immune response. तो ये आगे आपको समझ में, आई थिंक सो मेरी छींकी भी आई थी सर रिकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ये दूसरा टाइप है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी विच आवर बॉडी एक्टिवली मेक, जो सेकेंडरी प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स हमने पढ़े हैं, वो किससे बना? दैट इज मेड बाय आवर ओन बॉडी, द बी lymphocyte which is made by the bone marrow and they are trained in the bone marrow, matured in the bone marrow, and they have made the antibodies, and these antibodies are working against the antigen of the foreign body. ठीक है, जब हमारी बॉडी बना रही है तो ये ठल्ले हो गए, we'll call it passive immunity, सॉरी एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो वो जब हमारी बॉडी बना रही है तो हम उसको कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। ना एक्टिव इम्यूनिटी अगेन इज ऑफ टू टाइप। एक्टिव इम्यूनिटी को फिर हमने कहा एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? दैट इज व्हेन आवर बॉडी comes across some pathogen and then if they make, then we call it active acquired immunity. And acquired immunity का जो तरीका है उसको हम कहेंगे वैक्सीनेशन। चलिए पैसिव इम्यूनिटी पे जाते हैं। Now many a time you might have seen or you yourself must have fall sick, और उसके बाद आपकी बॉडी ने उसके ऊपर इम्यूनिटी ने काम करना शुरू करा, बट द पैथोजेंस आउटनंबर्ड एंड योर इम्यूनिटी जो है वो पीछे रह गई, एंड देन यू फॉल sick. Once you fall sick, then you visit to a doctor, and then doctor asks you कि भाई ये वाली टैबलेट ले लीजिए, ये वाले इंजेक्शन ले लीजिए। आप उसके सर ये कौन सी टैबलेट है? वो कहते हैं ये एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायो मीन्स लाइफ, whose बायो पैथोजन की लाइफ के अगेंस्ट काम करने वाली केमिकल्स को विल कॉल एज एंटीबायोटिक्स। Your body failed to produce antibodies. In that case, we have to take antibiotic from external source. Such type of immunity is called passive immunity. Snake bite. Human cannot make any serum against snake bite, but horses can. Horse को सांप काट जाएगा, horse मरता नहीं है, because horse can make serum against the snake poison. तो हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा कई सारे लोग जो है स्नेक बाइट पालते हैं और उसका वो पॉइजन इकट्ठा कर देते हैं ग्लास में, है ना? माइट हैव सीन ग्लास, उसके ऊपर रबर लगा देते हैं, स्नेक को एक्साइट करते हैं एंड दे पुट ऑन टू दैट ग्लास रबर, तो वो रबर को डंक मारता है एंड वो चिल करके अपना पॉइजन उसमें छोड़ देता है, एंड द पॉइजन इज कलेक्टेड इन द ग्लास। दीज आर यूज्ड ऑन द हॉर्सेज, और हॉर्स उसके बदले में क्या करेगा? दे विल प्रोड्यूस सीरम, एंड दो सीरम कैन बी फिल्टर्ड फ्रॉम देयर ब्लड एंड मेड अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। तो जब भी किसी को सांप काट जाए उसको वो इंजेक्शन लगाता है। सेम इज डन विद द टेटनस। टेटनस का वायरस के लिए भी हम नहीं ये सीरम बना सकते, हम नहीं एंटीबॉडी बना सकते, बट अदर एनिमल्स, तो दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर। तो एंटी टेटनस सीरम ATS, ठीक है। देन द मदर्स फर्स्ट मिल्क, जिसके बारे में हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड वेयर दिस वर्ड येलोइश ब्लड मिल्क जो शुरू में आता है, ऑफन गांव की औरतें वो मिल्क निकाल के फेंक देती है, बोली ये कचरा है, ये
वो जो ब्रेस्ट में जो है फर्स्ट टाइम मिल्क जो आया वो सारा कचरा है, दे आर नॉट टू फीड, बट दैट इज कंटेनिंग ऑल द एंटीबॉडी that will give the immunity to the newborn child and make him or her resistant against the diseases. So colostrum secreted by, very important question, अभी मैंने बोला था, again आ रहा है colostrum, the yellowish fluid colostrum secreted by the mothers during initial days of lactation has an abundant amount of antibodies. कौन सा वाला? Antibody A to produce in the infant. The fetus also receives some antibodies from the mother through placenta during pregnancy. Okay, so these are active and passive immunity. क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंस के भी आ सकते हैं, वैसे भी आ सकते हैं, डेफिनेशन की भी आ सकते हैं, तो इनको आपको याद रखना है. फिर अब यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. वाह, व्हाट इज ए वैक्सीनेशन? टाइम निकल जाएगा, छोड़िए, वैक्सीनेशन हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इनफ. थैंक यू चिल्ड्रन, गुड डे, एंजॉय योर डे.